Hello folks, welcome back to Ashley Thinks YouTube channel. I hope you all are going swimmingly, and in today's video we will discuss about daily routine. So if you are a beginner or an English learner, then this question, your daily routine will come in your life, definitely. Daily routine. Daily routine is something that you are doing daily in your life and you should know about it. How you can explain this thing in English to anyone, because this question is very common question that people used to ask in any conversation, or if someone wanna test you that you are good in English, then they will definitely ask you about your daily routine. So make sure you have to prepare about this question. But before that, if you came here for the first time and haven't subscribed yet, please do subscribe Ashley Thinks YouTube channel. You can also follow me on my other social media platforms. And now, before I tell you about daily routine, how you can explain your daily routine, I would like to say some other things, like the things that people oftenly use. What people used to describe their whole daily routine, like everything, like whatever they are doing in this time, whatever they are doing in that time, whatever they are doing in their office time, even that also. And that is not right, I think, because not everyone is interested what are you doing in your daily life, like not each and everything. It's just that if someone is asking about your daily routine, they just want an outline, you can say. Like if I am asking about your daily routine, I just want to know outline what you are doing in your daily life, not each and everything in detail. So except if someone is not asking about your daily routine in detail, you have to tell about your daily routine in just an outline, like a basic daily routine, what exactly you are doing in your daily life. Okay, now I will explain you how you should tell about your daily routine. So let's get started. So if you are answering about your daily routine, make sure there are some do's and don't that you should follow. So first we will discuss about don't tell your daily routine in detail. First thing, डेली रूटीन का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी हर एक चीज़ शेयर करेंगे। लाइक 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे के अंदर बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं हर चीज़ को आप बोलोगे, क्योंकि अगर ऐसा आप करने वाले हो तो ट्रस्ट मी, इट विल टेक 2-3 आवर्स, और आपके इस आंसर के लिए कोई 2-3 घंटे तो बैठेगा नहीं। तो इस चीज़ का कोई सेंस नहीं है। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। ओके, सेकंड नंबर, डोंट बी सो ऑनेस्ट वाइल गिविंग द आंसर। इतना ईमानदार भी मत बनो कि भैया हम तो जो करते हैं वो का वही बताएंगे। इतना नहीं करना है, ठीक है। बिल्कुल ईमानदार बनोगे तो जरूरी नहीं है हर इंसान एक प्रॉपर और गुड हैबिट वाली चीज़ें ही फॉलो करता है। डेफिनेटली नहीं करता हर कोई, सबकी एक अपनी लाइफ है। अगर हम सच बताने बैठेंगे तो इट्स काइंड ऑफ ऑकवर्ड, सो ऐसा नहीं करना है। कुछ चीज़ें आप अपने मन से भी जोड़ के बता सकते हो जिससे प्रेजेंटेशन अच्छी लगे, किसी को हमारी दिनचर्या को सुनने में अच्छा लगे और वो भी आगे जाके फॉलो कर सके, कॉपी पेस्ट कुछ तो कर सके। ऐसा कुछ घटिया नहीं बताना है कि हाँ मैं तो पढ़ा रहता हूँ पूरा दिन, बेड तोड़ता हूँ, या फिर पूरा दिन मोबाइल में घुसा रहता हूँ। ये चीज़ तो नहीं बतानी ना, वरना तो हमारा डेली रूटीन एक ही लाइन में कंप्लीट हो जाएगा। हमको बढ़ाना है उसको, कम से कम 10-15 लाइन तक तो पहुँचाना ही है। ज़्यादा बड़ा भी नहीं तो 10-12 लाइन तो कम से कम चाहिए, ना इससे ज़्यादा की ज़रूरत है ना इससे कम की ज़रूरत है। गॉट इट। तो उतने में कुछ काम भी करना पड़ता है। अब आप ये मत कर देना कि ठीक है मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, मैं तो सुबह से लेकर शाम तक बेड पे पड़ी रहती हूँ, तो फिर क्या बताऊँगी। तो ऐसे काम नहीं करने। थर्ड थिंग इज, कभी भी अगर आप वर्किंग में हैं तो ये चीज़ें नहीं बताते कि मैं ऑफिस में ये काम करता हूँ, या फाइल उठाता हूँ, बॉस को रिपोर्ट करता हूँ, दिस करता हूँ, दैट करता हूँ। ये चीज़ बताने की चीज़ नहीं है। ये नॉनसेंस है, किसी को इंटरेस्ट नहीं होता इतना घुस के जानने में। क्योंकि अगर कोई आपसे डेली रूटीन पूछ रहा है तो उसके सिर्फ ये रीजंस हो सकते हैं कि या तो वो देखना चाहता है कि आप कितनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, या तो वो देखना चाहता है कि आप बेसिकली क्या करते हैं, या फिर वो खुद सीखना चाहता हो शायद आपसे। तो ये कुछ सिचुएशंस है जिनकी वजह से लोग ये पूछते हैं, या फिर कुछ बात थोड़ी लंबी करने के लिए। इसके अलावा तो कोई रीज़न है नहीं इसका। अगर आपकी ऑफिस लाइफ के बारे में किसी को पूछना होगा तो वो पर्टिकुलरली ये कहेगा ना कि आप काम क्या करते हैं, किस तरह का काम करते हैं। ओके, सो नो नीड ऑफ एक्सप्लेनिंग योर ऑफिस वर्क इन योर डेली लाइफ। गॉट इट। तो लेट्स स्टार्ट आवर डेली रूटीन। से पहले सुबह उठने से दिनचर्या की शुरुआत करते हैं सभी। तो क्या बोलना है हमें, मैं रोज़ सुबह 6 बजे उठता हूँ। अब यदि आप ऐसे हैं जो 6 बजे नहीं उठते हैं, 5 बजे उठते हैं, तो शौक से बताइए। लेकिन अगर आप 9-10 बजे उठते हैं तो प्लीज़ इसे अपने अंदर ही रखें, सीक्रेट रखें, और 6 या 7 बजे का टाइम ही बताएं, क्योंकि ये बैड हैबिट में आता है। ओके, सो मेक श्योर इन योर डेली रूटीन यू आर गोइंग टू से अबाउट ओनली गुड थिंग्स एंड गुड हैबिट्स। गॉट इट। मैं रोज़ सुबह 6 बजे उठती हूँ। आई वेक अप एट 6 AM एवरी मॉर्निंग। अब उठने के बाद कुछ लोग बिस्तर में बहुत टाइम तक पड़े रहते हैं, कुछ लोग सीधा बाथरूम में जाते हैं। तो ये चीज़ें बताने की तो होती नहीं है, क्योंकि हमको एक अच्छा डेली रूटीन बताना है, तो हम काल्पनिक डेली रूटीन बताएंगे। ओके, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आई हैव माई ब्रेकफास्ट आफ्टर अ शॉर्ट वॉक, आप ये कह सकते हैं। या फिर आई विल गिव यू सम अल्टरनेटिव्स ऑल्सो। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि आई वॉश माई फेस, ब्रश माई टीथ एंड आफ्टर दैट आई हैव माई ब्रेकफास्ट। अब अक्सर लोग कामकाजी होते हैं, या तो वो ऑफिस जाते हैं या तो कॉलेज जाते हैं। तो जहाँ भी आप जाते हैं उसकी बात करेंगे। तो अप्रॉक्स ये टाइमिंग 8-9 बजे का ही होता है, राइट। तो यू विल से आई टेक शावर एंड गो टू माई ऑफिस एट 9। अगर आप स्कूल जाते हैं तो आई टेक शावर एंड गो टू माई स्कूल एट 8। अब इसमें ये नहीं है कि आपको ये बताना है कि फिर मैं तैयार होता हूँ, नहाता हूँ, फिर मैं तैयार होता हूँ, फिर मैं यूनिफॉर्म पहनता हूँ या फिर ऑफिस की ड्रेस पहनता हूँ और फिर जाता हूँ। इतना डिटेल बताने की जरूरत नहीं है।
अब स्कूल में जाने के बाद डेफिनेटली पढ़ाई होती है और ऑफिस में जाने के बाद कामकाज ही होता है, तो ये भी बताने की कुछ खास जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें भी बहुत टाइम लग जाता है, राइट। तो आपको ये नहीं बताना है, जस्ट डायरेक्ट टेल अबाउट द लीविंग टाइम ऑफ योर ऑफिस और स्कूल। ओके, आई फिनिश माई वर्क एंड लीव माई ऑफिस एट 5 PM, या फिर इसको और सिंपल करना है तो आई लीव माई वर्क एट 5 PM। वेरी इजी। अब अक्सर लोग घर आने के बाद नहाना बहुत पसंद करते हैं क्योंकि बहुत थके हुए और अनफ्रेश फील करते हैं, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे इफ़ आई फील अनफ्रेश आई टेक इवनिंग शावर, जो कि बहुत लोग अक्सर करते हैं अपनी डेली रूटीन में। और अगर आप उन लोगों में से हैं जो ऑफिस से सीधा जिम जाकर एक्सरसाइज करते हैं, तो आप कुछ इस तरीके से अपनी डेली रूटीन में इस लाइन को ऐड करेंगे, देन आई वर्क आउट फॉर ऑलमोस्ट एन आवर अकॉर्डिंग टू योर टाइमिंग एंड अराइव एट होम on which time you are coming at home. Like I will say, arrive at home by 7:30 PM. It's fine. Now see one more thing. अगर आप जब भी ये चीज़ बता रहे हैं कि मैं वहाँ से निकला, तो अब ये नहीं बताना कि मैं वहाँ से बस ली मैंने, फिर टिकट लिया, फिर बैठा, क्योंकि मैंने कुछ एक वीडियो में देखा है ये चीज़ कि वो ये भी बताते हैं कि मैंने टिकट लिया, फिर मैं सीट पे बैठा, फिर मैं बस स्टैंड पे उतरा, फिर मैं ऑफिस गया, फिर मैं वापस आया, फिर मैंने जिम गया, फिर मैंने जिम में ये किया, मैंने कोच से बात करी। तो इतना डिटेल मत बताइए, सामने वाले को सुलाना तो है नहीं, हमको सिर्फ एक डेली रूटीन बताना है। इतना नहीं ना कि वो हाथ जोड़ के भगले वहाँ से कि नहीं नहीं आप रहने दो, आप मुझे बत्ती बताओ, मुझे तो जानना ही नहीं है। सो फोकस ऑन योर आंसर टू कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट। अच्छा, घर आने के बाद क्या करते हैं, नहाने के बाद हो या फिर शाम को घर आने के बाद अक्सर लोग पूजा ही करते हैं, तो अगर आप पूजा नहीं करते तो भी ये चीज़ बोल दीजिए। ओके, सो देन आई प्रे एंड स्पेंड सम टाइम विद माई फैमिली, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि आई रीच एट होम एंड प्रे। दोनों में से जो भी लाइन आपको सूट करे आप कह सकते हैं, लेकिन या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने वाली बात अच्छी भी लगती है और ये ट्रू भी है कि सब ऑफिस से घर आने के बाद नहा धोकर अपनी फैमिली के पास ही बैठते हैं। बाय 9 PM आई टेक माई डिनर विद माई फैमिली मेम्बर्स, और यू कैन से आई हैव माई डिनर अराउंड 9 PM। अब खाना खाने के बाद अक्सर लोग रिलैक्स होते हैं बेड पे या फिर काउच पे, रिलैक्स होकर टीवी देखते हैं या फिर मोबाइल्स देखते हैं, तो यही हमको बताना है। देन आई रिलैक्स ऑन माई बेड और काउच एंड वॉच टीवी। अब हर जगह हमको टाइम मेंशन नहीं करना है कि मुझे इतने बजे मैंने ये किया, इतने बजे ये किया। हमने बीच बीच में टाइम बता दिया, जैसे कि हमने ऑफिस जाने का टाइम बता दिया, हमने उठने का टाइम बता दिया, हमने डिनर का टाइम बता दिया, ऑफिस छोड़ने का टाइम बता दिया, तो उसी टाइम का आइडिया वैसे भी सामने वाले को लग ही जाता है। तो हर जगह हर चीज़ का पर्टिकुलर टाइम नहीं बताना है। ओके, अब इसके बाद क्या करते हैं, कुछ लोग अपने मोबाइल लेके बेड पे सो जाते हैं और कुछ लोग होते हैं वो अपना किचन वगैरह साफ करने के कुछ घर के काम होते हैं वो करते हैं। तो इन दोनों सिचुएशंस में आपको क्या बोलना है, आफ्टर दैट आई यूज माई मोबाइल एंड चेक माई सोशल मीडिया अकाउंट्स, या फिर आप बोल सकते हैं देन आई क्लीन माई किचन एंड वॉश माई डिशेज। अब कुछ लोग होते हैं जो अगले दिन की तैयारी भी एक दिन पहले ही करते हैं, तो यदि आप उन लोगों में से एक है तो आप ये लाइन भी इसमें ऐड कर सकते हैं, देन आई गेट थिंग्स रेडी फॉर नेक्स्ट डे। अब चूंकि बहुत ज़्यादा रात हो गई है तो हमें प्रे करके सोना चाहिए, सो वी विल से आई प्रे एवरी डे बिफोर आई स्लीप। आप नहीं भी करते हैं तो भी ये चीज़ आपको बोलनी चाहिए, ये अच्छी है और आई थिंक आपको करनी भी चाहिए। से गुड नाइट टू योर गॉड। अब सोने का टाइम होगा तो हम क्या बोलेंगे, हम इस टाइम पे अपना टाइम बता सकते हैं ताकि एक आइडिया लग जाए कि कौन सा टाइम चल रहा है। सो यू विल से आई गो टू बेड अराउंड 11 PM एंड स्लीप। और इसे बोलने का दूसरा तरीका है आई गेट इन बेड अराउंड 11 PM एंड स्लीप टाइट। सो दैट शुड बी योर डेली रूटीन। Practice it, learn it, so that you'll be able to answer the question of your daily routine. Okay? Now, I would like to tell you about my daily routine in a short way so that you can understand that if you are not going outside, you are not going to school, what you can say and what exactly I am doing in my daily routine. Okay? So, I wake up at 6 AM every morning. I wash my face, brush my teeth, and feed the birds and water the plants. I have my breakfast after a short walk. Then I finish my house chores and help my mother in kitchen. I take shower and pray. After that I play with my niece and back to my room and study till I can. Then I have lunch and go back to study again. I used to study till 6 PM. Then I worship. By 9 PM I take my dinner with my family members. Then I feed street dogs, wash my dishes, and finish some other stuffs. Then I relax on my bed, use my mobile, check my social media accounts. I make video on YouTube, so I look for new topics, make notes on it so that I can make videos whenever I get time. Now, I pray and thank my God every day before I sleep. And then I go to bed around 12 PM and sleep tight. So that's my daily routine. I hope now you understand how you should give answer of daily routine. Now, let me know in the comment box what do you think about my daily routine. It is good or I need to improve in my daily routine. Okay. So I hope you like this video. Then please do subscribe Ashvi Thinks YouTube channel and please hit the bell icon also so that you will get the notification of every videos on time. And
Please hit the like buttons. It motivates me a lot. You can comment below about your daily routine, how you spend your whole day. You can write there also. I will surely read your daily routine. So that's all for today's video. Keep learning, keep speaking, keep practicing. Okay? So take care, bye bye, and have a great day.